Today we are going to discuss very important questions according to the CBSE board examination point of view. Okay, this type of question is always coming. So we have taken a general form. Na? See, this is the quadratic equation ax square plus bx plus c. So in place of a, b, c, you will get any number, but process is the same. I have taken the general equation of quadratic polynomial, and we have to find all five parts of this question. Now we have to find alpha square plus beta square, alpha upon beta plus beta upon alpha, alpha cube plus beta cube, 1 upon alpha cube plus 1 upon beta cube, alpha square upon beta plus beta square upon alpha, where alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial. Okay. Now, if you know how you will find these terms in the general form, then if you will get any other quadratic polynomial where in the place of ABC some numbers are written, then you can do. So now, first we will start with alpha square plus beta square. See, to find these things, first we will revise all the algebraic identities. जो algebraic identities आपने पढ़ रखा है, और सारे formulas भी आपको याद होने चाहिए, मालूम होने चाहिए। a plus b whole square, a minus b whole square, a plus b whole cube, a minus b whole cube, a cube plus b cube, a cube minus b cube, like this जितने भी identities हैं algebra के, वो सारे आपको तैयार होने चाहिए। ठीक है। Now we are going to start this exercise alpha square plus beta square. Now ठीक है, तो first we have to find the value of alpha and beta. देखो यहाँ पे हम सबसे पहले जो sum of zeros and product of zeros का जो relation है पहले वो लिख लेते हैं ना। See, the sum of zeros alpha plus beta ना, alpha plus beta is equal to, देखो quadratic polynomial है आपका ax square plus bx plus c, तो alpha plus beta क्या हो जाएगा, minus b upon a. Always you will use alpha plus beta is equal to minus b upon a, and alpha into beta, तो ये होता है according to this polynomial it will be c by a ना। So we have the result for alpha plus beta and alpha into beta. Now you want to find alpha square plus beta square, अब अलग अलग alpha beta की वैल्यू थोड़ी ना पुट कर दोगे, तो यहाँ पे आइडेंटिटीज का हेल्प लेना होगा। Always you will try to convert all the given question in the form of alpha plus beta into alpha beta. Means जो भी फॉर्मेट जिसमें जिस क्वेश्चन में जो भी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को आपको कन्वर्ट करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा के फॉर्म में। हमेशा हर क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करेंगे ना, और इट शुड बी कन्वर्टेड। सी, अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिख लेंगे, वी कैन राइट इट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ना। इट इज क्लियर दैट कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, बिकॉज़ जब इसका एक्सपेंशन होगा तो इसके एक्सपेंशन में आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे आपने पहले से माइनस 2 अल्फा बीटा लगाया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यू गेट द सेम। लाइक दिस यू विल डू इन ऑल क्वेश्चंस ना। तो यूज द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक। सी, अब यहाँ पे तो दोनों वैल्यू पता है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a होल स्क्वायर माइनस 2 into अल्फा बीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे है c upon a ना। तो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड सॉल्व इट, तो b square upon a square minus 2c upon a, और क्या कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा एलसीएम ले लो, a square एलसीएम ले लिया तो इट विल बी b square minus 2ac ना। दिस इज द फर्स्ट आंसर फॉर alpha square plus beta square, it is b square minus 2ac upon a square. You can write it for first answer, it is alpha square plus beta square is equal to minus b square minus 2ac upon a square na? This is the first answer. Okay, now we are going to solve another question, second question. So why we have written the result here, because second question में भी यही करना है, तो फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये स्टेप तो फॉलो करना है, तो बार-बार नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग फर्स्ट वाले के रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस।
फाइंड करने के लिए अगेन यू विल कन्वर्ट इट इनटू अल्फा प्लस बीटा इनटू एंड अल्फा इनटू बीटा फॉर्मेट ना। तो क्या करेंगे, वी कैन टेक द एलसीएम, इट विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा ना, वी कैन राइट इट। तो देखो अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रिजल्ट जस्ट निकाला हुआ है आपने। नाउ सब्स्टिट्यूट हियर, इट इज b square minus 2ac upon a square and whole divided by alpha beta. Alpha beta is here c upon a, c upon a। देखो a के से कैंसिल कर दिया आपने, it will be b square minus 2ac, 2ac upon this will be c ऊपर आ गया ये यहाँ से ये a c नीचे आ गया ये this will be a c ना, करेक्ट। तो a से कैंसिल हो गया और a ये आ जाएगा c के साथ b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac है ना। तो सेकंड आंसर हम लोग को मिल चुका है। सेकंड आंसर इज अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac, करेक्ट। नाउ फॉर द थर्ड पार्ट, in the third part it is asking for alpha cube plus beta cube. So see how you will find alpha cube plus beta cube. Again we will convert the alpha cube plus beta cube in the form of alpha plus beta and alpha into beta. So you can write it alpha plus beta का whole cube लिख दो, चलो ना। alpha plus beta का whole cube, ये पावर को यहाँ पे ले जाके नहीं लिखा है, it is the identity, algebraic identity। इसका एक्सपेंशन जब करेंगे तो ये मिलेगा आपको, बट और भी चीजें मिलती है उसको हम लोग यहाँ माइनस कर देंगे, -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा सी। तो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस अल्फा 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो ये कैसे लिख लिया आपने जरा देख लो। वी हैव अ फॉर्मूला अल्फा a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a cube plus b cube plus 3ab a plus b। This is the formula for a plus b whole cube। अब समझ लो आपको ये रिजल्ट चाहिए है ना, a cube plus b cube का फॉर्मेट लिखना है, तो we can send this part to left hand side। तो यहाँ से जो a cube plus b cube का जो रिजल्ट होगा it will be a plus b whole cube minus 3ab a plus b। तो we can write it now by using this result। तो देखो एक लिख दिया है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब है, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, तो वी कैन राइट इट अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, ये -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो वी आर यूजिंग दिस concept ना, clear। now put the values। now it is very easy because we have alpha plus beta और alpha into beta सबकी वैल्यू है हमारे पास, we can put। तो क्या करेंगे, put the value -b upon a whole cube और -3 ab की देखो वैल्यू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है कि c अपॉन a और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -b अपॉन a ना। नाउ सॉल्व इट, ये हो जाएगा -b क्यूब अपॉन a क्यूब और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी +3b c अपॉन a स्क्वायर। नाउ वी कैन टेक द एलसीएम। एलसीएम आप क्या ले लोगे, a क्यूब ले लो, तो यहाँ -b क्यूब और ये हो जाएगा +3abc। So this is the result for alpha cube plus beta cube। Done? तो इसको भी नोट कर लेते हैं because in next part we can use these results। तो थर्ड में आगे alpha cube plus beta cube is equal to -b cube plus 3abc upon a cube, है ना। Now move to the fourth part। In fourth part, it is asking for alpha 1 upon alpha cube plus 1 upon beta cube। तो अभी जो रिजल्ट निकालना है ना, फिर से उसको यूज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेके अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, तो ऊपर में आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ना। बाय टेकिंग एलसीएम यू विल गेट इट। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब एलसीएम ले लिया, तो जब डिवाइड करोगे जो बचेगा ऊपर लिखना होता है। समझ रहे हो कैसे बन गया, तो एलसीएम सब लोग जानते हो, फ्रैक्शन में कैसे आप एडिशन करते हो। Now this time we have gotten the result for alpha cube plus beta cube। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, alpha cube plus beta cube पहले निकालेंगे, just we had done in third part, और फिर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे।
ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में है तो इसका रिजल्ट इसमें यूज कर ले रहे हैं। सपोज करो एग्जाम में कोई ये पूछ दिया आपसे, तो क्यों ये पूछ दिया तो सीधे इसका रिजल्ट आपको कहां मालूम रहेगा। तो फर्स्ट यू विल फाइंड द अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, वी हैव डन इट थर्ड पार्ट, देन डू द फोर्थ पार्ट ना। तो अभी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकाली तो हम लोग पुट कर लेंगे, इट इज माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन a क्यूब ना, और होल डिवाइडेड बाय इस अल्फा प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है तो वी कैन राइट इट c बाय a का होल क्यूब ना, लाइक दिस वी कैन राइट। नाउ सिंपलीफाई, देखो a क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट minus b cube plus 3abc upon c cube ना, this is the result for the fourth part। चलो fourth part का रिजल्ट लिख लो, it is 1 upon alpha cube plus 1 upon beta cube का जो रिजल्ट होगा minus b cube plus 3abc divided by c cube। okay, done। now move to the fifth part। what is the fifth part? see, in fifth part alpha square upon beta plus beta square upon alpha। तो क्या करेंगे, पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो टेक एलसीएम अल्फा बीटा, यहां पे हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब देखो सारे रिजल्ट्स आपने पहले से निकाले हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का रिजल्ट देखो ये रखा हुआ है, थर्ड पार्ट में आपने निकाला था, एंड अल्फा बीटा ऑलरेडी वी हैव नो। सी पुट इट alpha cube plus beta cube minus b cube plus 3abc divided by a cube। देखो यहाँ से रिजल्ट ले लिया, ठीक है, एंड होल डिवीजन ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या है c अपॉन a। तो देखो a के से इसमें से a के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर बचेगा और a स्क्वायर आएगा c के साथ, तो वी कैन राइट इट minus b cube plus 3abc अपॉन a square and so like this you can find this type of question। ऐसे क्वेश्चन अगर दिए अल्फा बीटा के रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन तो ऑलवेज यूज द रिलेशन अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा, और जो भी फॉर्मेट है ट्राई टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा अल्फा इनटू बीटा, और ये हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो डू द प्रैक्टिस फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी मैंने आपको जनरल फॉर्म में सारे क्वेश्चन करके दिखाए, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है पॉलिनोमियल का ax² + bx + c, तो a b c की जगह नंबर्स मिल गए, सपोज करो 2x² + 3x + 5, तो a b c की वैल्यू लेके ये सेम स्टेप आपको ऐसे ही रिपीट करना है ना। ओके, रिवाइज इट।